Good afternoon, everyone. I am Michelle. Today I am going to explain chapter number 14, The Eyes Have It. The theme of this chapter is travel and tourism. So, without any discussion, we start our chapter. So, before starting our chapter, I am gonna tell you that this chapter is written by Ruskin Bond. He is a very famous author. You all may have listened his name before or read his comics or stories before. He is famous for his poetry and also for his stories. So now I am gonna tell you this story in a short way first. This story tells us about the author's experience of an interesting train journey in which first he was alone, but then the incident that happened with him was very cool. So now let's start our chapter. I'm gonna tell you this chapter in English also and in Hindi also so that you may understand it more clearly. So if I ask you to underline any word or to write a note down in your registers, you may do it if you want. So now let we start our chapter. I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. This line tells us the author is speaking about himself, that he had booked a train compartment for him up to Rohana. Means Rohana is the name of a city or a place where the author wants to go. Then suddenly a girl got into the compartment. The couple who saw her off were probably her parents. The couple, those who saw her off, the meaning of saw her off is that जब कोई जाता है तो हम उसे अलविदा करते हैं, राइट? तो saw her off का मतलब है कि उसको विदाई दी, उसको अलविदा किया. और वो probably यानी शायद, probably means शायद. If you want you can underline the word probably. Probably means शायद. The author don't know that they were the exact parents of the girl or not. So he is using the word probably कि शायद वो उसके parents थे जो उसे ट्रेन तक छोड़ने आए थे. They seemed very anxious about her comfort and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, where not to lean out of windows and how to avoid speaking to strangers. I will explain this para in Hindi. They seemed very anxious means उसके जो माता पिता थे वो उसको लेकर थोड़े चिंतित थे, थोड़े वरी थे. Obviously जब आप कहीं बाहर जाएंगे अकेले तो आपके पेरेंट्स को ऑब्वियसली आपकी चिंता होगी. सो सेम इज़ हेयर. उस लड़की के कंफर्ट के लिए यानी उस लड़की की कंफर्ट के लिए उसको कोई दिक्कत ना हो सफ़र करने में, उसको उस चीज़ को लेकर उसके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी परेशान थे. जो वुमेन थी, वुमेन को आप कह सकते हो उस लड़की की मॉम. जो उस लड़की की मॉम थी वो उसको बता रही थी कि आपको कहाँ अपनी चीज़ें रखनी हैं. विंडो के बाहर लीन नहीं करना. लीन यू कैन अंडरलाइन द वर्ड लीन. लीन आउट ऑफ विंडोज मीन्स ट्रेन की खिड़कियों के बाहर आपको कुछ नहीं फेंकना चाहिए और किसी स्ट्रेंजर से आपको बात नहीं करनी चाहिए. यही सेम इंस्ट्रक्शंस हमारे पेरेंट्स भी हमें देते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं या कहीं हम अकेले जाएं या अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं या कहीं दूर ट्रैवल करते हैं. विशेषकर जब हम कहीं दूर ट्रैवल करें अकेले तो हमारे पेरेंट्स हमें यही इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें किसी स्ट्रेंजर से बोलना नहीं चाहिए, विंडो के बाहर हाथ नहीं निकालना है या विंडो के बाहर कुछ फेंकना नहीं चाहिए. तो सेम यहाँ पर उस लड़की के साथ भी है. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पैरा. They called their goodbyes and the train pulled out of the station. As I totally blind, I am all the time, my eyes sensitive only the light and darkness. I was unable to tell what the girl looks like, but I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. I'm gonna explain this paragraph in Hindi. उस लड़की के मम्मी पापा ने उसको बाय किया और जो ट्रेन थी वो स्टेशन पर से
चली गई। द ट्रेन लीव्ड आउट द स्टेशन। पुल्ड आउट ऑफ अ स्टेशन ये एक फ्रेज है, अगर आप चाहें तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन मीन्स जो ट्रेन थी, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा। यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती है कि जो ऑथर है वो ब्लाइंड है। उस टाइम पर वो ब्लाइंड था, तो उसकी जो आँखें थीं वो केवल लाइट को और डार्कनेस को फील कर सकती थी। जैसा कि आप अपनी आँखों के ऊपर अपने पाम्स रख कर देखिए, और जब आप अपने आँखों पर पाम्स रखेंगे तो आपको अंधेरा दिखेगा, मगर अगर आप किसी लाइट रूम में हैं तो करिएगा। अगर आप जब हाथ हटाएंगे तो आपको लाइट सेंसिटिव होगी, लाइट का पता चलेगा। ऐसा ही कुछ था आर्थर के साथ। तो क्योंकि आर्थर अंधा था इसलिए वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि लड़की दिखती कैसी थी। प्रोबेबली ये सच में एक फैक्ट है, जब कोई अंधा होगा तो वो दूसरे की पहचान नहीं बता पाएगा, लेकिन ऑथर को इतना पता है कि लड़की ने स्लीपर्स पहनी थी। जिस तरीके से उन स्लीपर्स ने उस लड़की के हील्स, अंडरलाइन द वर्ड हील्स, द मीनिंग ऑफ हील्स इज़ एड़ी, जब उस लड़की की एड़ी पर चप्पल बार बार स्लैप कर रही थी। जब आप चप्पल पहनते हैं, आप सभी लोग चप्पल पहनते हैं, जब आप चप्पल पहनकर चलते हैं तो जो चप्पल है वो बार बार आपकी जो हील्स हैं, एड़ियाँ हैं, वहाँ पर हिट करती है, तो उससे एक साउंड आता है। उस साउंड की वजह से ऑथर ने लड़की के इस बात का पता लगा लिया कि वो चप्पल पहनी हुई थी। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट पैरा। It would take me some time to discover something about her looks, and perhaps I never would. But I like the sound of her voice and even the sound of her slippers. So here the author tells us that कि शायद वो कभी भी वो लड़की दिखती कैसी थी इसका वो कभी जिक्र कर नहीं पाएगा, लेकिन शायद वो कभी कर भी नहीं पाएगा क्योंकि वो ब्लाइंड है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो कभी भी किसी और का चेहरा या कैसे आप दिखते हो इस चीज़ का वो नहीं अनुमान लगा सकते। वो तो ये भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो खुद कैसे दिखते हैं। ये चीज़ फैक्ट है, वो खुद नहीं अनुमान लगा सकते। जब वो मिरर में देख ही नहीं सकते तो वो पता कैसे लगाएंगे कि वो कैसे दिखते हैं। लेकिन उस ऑथर को उस लड़की की आवाज़ अच्छी लगी और साथ ही साथ उस लड़की के स्लीपर्स का साउंड भी, ऐसा ऑथर का कहना है। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा? आई आस्क्ड। क्या तुम पूरे रास्ते देहरा जा रही हो? देहरा का फुल फॉर्म आप कह सकते हैं देहरादून को। ऑथर कह रहा है देहरादून के बारे में। वो उससे पूछता है लड़की से कि क्या तुम पूरा रास्ता देहरादून तक जा रही हो। We will move to the next paragraph. I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. You can underline the word startled. Startled means shocked. An expression of exclamation. चौंका दिया. I must be been sitting in a dark corner. ऑथर का कहना है कि शायद वो किसी अंधेरे कोने में बैठा था ट्रेन के, पूरे कंपार्टमेंट में वो अकेला था। क्योंकि उस टाइम पर, जिस टाइम की ये स्टोरी है, उस टाइम पर जो ट्रेन्स थी वो न्यू लॉन्च हुई थी, जिस वजह से ज़्यादा लोग उसमें ट्रैवल करना पसंद नहीं किया करते थे। तो ऑथर का कहना है कि शायद वो किसी अंधेरे कोने में बैठा था, क्योंकि जब उसने ये चीज़ बोली, आर यू गोइंग द वे टू देहरा, जब उसने ये सब उससे पूछा लड़की से, तो वो शॉक्ड हो गई थी